ریڈیو پاکستان قومی نشریاتی رابطے پر خصوصی فیچر پروگرام تعمیر نو پیش خدمت ہے۔ آج کا موضوع ہے رابطہ سڑکوں کی بحالی۔ تحریر فجر خان، راوی محمد فاروق اقبال اور ساجدہ نعیم، پروڈیوسر محمد عارف۔ پیشکش ریڈیو پاکستان حیدرآباد۔ کسی بھی خطے یا ملک کی اقتصادی و معاشی ترقی و خوشحالی کا راز اس کے راستوں میں چھپا ہے۔ اگر راستے ہموار ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ وہاں معیشت پروان نہ چڑھے، مواصلات جس سے وصل کی خوشبو آئے اور لمس کا احساس امڈ آئے۔ جی ہاں، یہ ذرائع آمد و رفت جس کے ذریعے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی کے ساتھ آ جا سکیں، مل سکیں اور تجارت کر سکیں۔ دنیا کی پہلی ایجاد پہیہ قرار پایا، جسے چلانے کے لیے کچے راستے، پگڈنڈیاں بنائی گئیں اور ارتقاء کا سفر طے کر کے عہد حاضر میں سڑک، روڈ، اسٹریٹ، شاہراہ، پل، ہائی وے، سپر ہائی وے اور موٹر ویز کا عنوان پایا۔ کھیت سے منڈی تک سڑک کو زرعی ترقی کا پہلا زینہ قرار دیا گیا۔ بین الصوبائی اور بین الاضلاع سفر اور ساز و سامان کی نقل و حرکت کے لیے ملک اور خاص طور پر سندھ میں جو سڑکیں اور ہائی ویز بنے وہ ہماری معاشی اور تجارتی نشوونما اور فلاح کا روڈ میپ تھا، مگر سندھ میں ہونے والی حالیہ موسلادھار بارشوں اور سیلاب نے مواصلات کا یہ نظام بری طرح تباہ و برباد کر ڈالا۔ قدرتی آفات اس کا بڑا سبب تو قرار دیتے ہیں، لیکن سیوریج اور ڈرینیج کے ناقص و نامکمل نظام نے اس بربادی و تباہی کی شدت خطرناک سطح تک پہنچا دی، جس پر متعلقہ انتظامی محکمے کو سوچنا پڑے گا۔ اس تباہی سے لوگ بے گھر ہو گئے اور دن سورج تلے اور رات کھلے آسمان تلے گزارنے پر مجبور و بے بس ہو گئے ہیں۔ یہ اتنا بڑا انسانی المیہ بن گیا جس کے ازالے کے لیے بھرپور وسائل و طویل عرصہ بھی ناکافی لگتا ہے۔ صوبہ سندھ میں حالیہ بارشوں کے باعث ہونے والی تباہی سے 450 ارب روپے سے زائد نقصانات کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ صوبے میں رواں برس معمول سے 500% سے زائد بارشیں ہوئیں، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف کی اپیل پر سیلاب متاثرین کے لیے بین الاقوامی تنظیموں اور اداروں نے 50 کروڑ ڈالر سے زائد امداد کا اعلان کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف بین الاقوامی تنظیموں اور مالی اداروں کے نمائندوں سے مسلسل رابطے میں ہیں کہ کم از کم سندھ میں رابطہ سڑکیں پھر سے تعمیر اور مرمت کر دی جائیں، کیونکہ لنک روڈ سیلاب بہا کر لے گیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ سیلاب متاثرین کی بحالی اور مدد کے لیے وزیر اعظم سرگرم عمل ہے، جس پر بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کے سیلاب متاثرین کی فوری بحالی کے اقدامات پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے فلڈ ریلیف کیش پروگرام کے تحت 25,000 فی خاندان امداد کے لیے بین الاقوامی اداروں کی طرف سے امداد کی منتقلی یقینی بنائی گئی ہے۔ صوبائی حکومت کی جانب سے ابتدائی تیار کردہ رپورٹ میں حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اصل نقصانات ابتدائی اندازوں سے کہیں زیادہ ہو سکتے ہیں، جو پورے صوبے میں ہونے والے نقصانات کے جامع سروے کے بعد ہی سامنے آ سکیں گے۔ سندھ میں رواں سال جولائی اگست کے مونسون سیزن میں غیر معمولی بارشیں ہوئیں۔ محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق سندھ میں جولائی کے مہینے میں اوسط سے 308% اور اگست میں اوسط بارشوں سے 561% زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ بارشوں نے پورے صوبے سندھ کے تمام ہی اضلاع کو متاثر کیا ہے، جس سے 2010 اور 2011 کے سیلاب سے بھی بڑے پیمانے کا انسانی بحران پیدا ہوا ہے۔ ان دو برسوں میں
आने वाले सैलाब के बाद एशियाई तरक्याती बैंक और आलमी बैंक ने मुल्क में सैलाब से नुकसानात का कुल तखमीना 324 अरब रुपए से जायद लगाया गया था, जिसमें सिर्फ सिंध में 310 अरब रुपए का नुकसान हुआ था। ताहम 11 साल बाद इससे भी ज्यादा शिद्दत के साथ आने वाली तबाही से इस बार ये नुकसान 450 अरब रुपए से जायद रहने का तखमीना लगाया गया है। तबाहकुन बारिशों और दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाब से सूबे के तमाम ही 30 अजला मुतासिर हुए हैं, जिनमें से 22 को मुकम्मल तौर पर और एक ज़िले के 2 देहात को पहले ही आफतज़दा करार दिया जा चुका है। सूबे में मजमूई तौर पर अब तक के अंदाजों के मुताबिक 5,718 देहात मुतासिर हुए हैं। बारिशों की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट नौशेरो फरोज के पटीदन शहर में हालिया मौसम में अब तक के आदाद शुमार के मुताबिक 1542 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड हुई। रिकॉर्ड तोड़ बारिशों से सैकड़ों कीमती इंसानी जानें ज़ाये और 2000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। जानी नुकसान के अलावा इमलाक, इंफ्रास्ट्रक्चर बशमूल सड़कों, मवेशियों और फसलों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। इब्तदाई अंदाजे के मुताबिक सूबे में अब तक 15 लाख कच्चे घर मुतासिर हुए हैं और अगर इन घरों के मकीनों को 1 लाख रुपए फीकस दिए जाएं तो ये 150 अरब रुपए की रकम बनती है। दूसरी जानिब हुकाम का कहना है कि सूबे में 27,53,000 एकड़ रकबे पर फसलें मुतासिर हुई हैं, जिनमें से 19 लाख से जायद एकड़ पर काश्त की गई फसलें तो मुकम्मल तौर पर तबाह हुई हैं। इनमें कपास, खजूर, गन्ना, चावल, सब्जियां, टमाटर, मिर्च, प्याज और दीगर शामिल हैं। हुक्काम का कहना है कि मजमूई तौर पर सूबे में सिर्फ फसलों की तबाही से तकरीबन 185 अरब रुपए नुकसान का तखमीना लगाया गया है। सबसे ज्यादा नुकसान कपास की फसल को पहुंचा है, जिसका तखमीना 135 अरब रुपए से जायद का लगाया जा रहा है। माहिरीन ज़राअत का कहना है कि इस कदर बड़े नुकसान से मुल्क की सबसे बड़ी बरामदी जिन्स यानी टेक्सटाइल को शदीद धचका पहुंचने का खदशा है। सूबे में सड़कों, पुलों और रास्तों की तामीर के लिए दर्जनों अरब रुपए दरकार हैं। बारिशों और दरिया में सैलाबी कैफियत ने आपाशी के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचाया, जिसका तखमीना 8 अरब से जायद लगाया जा रहा है। सूबे की 577 अहम शाहराहों की 22,000 किलोमीटर लंबी सड़कें तबाह हो चुकी हैं, जिनकी मरम्मत का तखमीना 22.8 अरब रुपए लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें वो सड़कें शामिल नहीं हैं जो सूबाई दारुल हुकूमत कराची में टूट फूट का शिकार हुई हैं। अगर इन्हें भी शामिल कर लिया जाए तो ये रकम 72 अरब रुपए से जायद बन जाएगी। रिपोर्ट के मंदरजात के मुताबिक इब्तदाई तखमीनों में पूरे सूबे के बल्दियाती ढांचे को पहुंचने वाले नुकसानात खास तौर पर कराची, हैदराबाद, सक्खर और दीगर बड़े शहरों में शामिल नहीं हैं। स्कूलों, अस्पतालों और दीगर सरकारी दफातर को पहुंचने वाले नुकसानात का तखमीना अभी मुरतब नहीं किया जा सका और इससे नुकसानात की लागत में मजीद इजाफा होगा। इब्तदाई तखमीनों के मुताबिक मानसून की हालिया बारिशों में 1.2 अरब रुपए मालियत के मवेशी हलाक हुए, लेकिन ये तादाद अब भी कम नज़र आ रही है क्योंकि सूबे के दूर दराज इलाकों से ये मालूमात सड़कें और राबते के दीगर ज़राए तबाह होने के बायस जमा नहीं की जा सकी हैं। ये सूरत हाल इंतहाई तकलीफ दे है, जिसमें पाक फौज ने मिलकर मुतासिरीन की मदद की। वज़ीर आला सिंध ने इस सूरत हाल को इंतहाई तकलीफ दे करार देते हुए कहा है कि रिलीफ कैंपों के दौरे के दौरान उन्होंने खवातीन और बच्चों की आंखों में बेबसी देखी। उन्होंने कहा कि इस नाजुक सूरत हाल ने इंतहाई रंजीदा कर दिया है। उनका कहना था कि उनकी हुकूमत मुतासरा लोगों के लिए खैमे, मच्छरदानियों, बिस्तर, खाने पीने की अशिया, अद्वियात और दीगर चीजों का बंदोबस्त करने की हर मुमकिन कोशिशें कर रही है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह
शाहराहों और सड़कों की मरम्मत और बहाली के हवाले से कहते हैं। खास तौर पे हैदराबाद से सक्खर मोटरवे उस पे बात हुई है और एक किस्म का इत्तेफाक हुआ है कि किस तरीके से उसको आगे ले जाना है। उसके साथ साथ बड़े जो और प्रोजेक्ट्स हैं, जामशोरो से सेमन वाला हाईवे, उमरकोट से मिरपुर खास वाला, केटी बंदर से घारो वाला, इन पे भी डिस्कशन है। उसके साथ साथ जो इस वक्त हालात हैं सैलाब के, खास तौर पे रास्ते शाहराहें बंद हैं, उस जगह पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी और सूबाई हुकूमत मिलके जो भी हमारे एक आर्टरी कम से कम यानी हमारा जो नेशनल हाईवे है उसको चलता रखें। जैसे कि इंडस हाईवे, जैसे तुमने बताया, कई ऐसी जगह है जहाँ 8 से 10 फुट पानी, 1.5 करोड़ के करीब लोग बेघर हुए हैं। सूबाई हुकूमत ने रिलीफ, रेस्क्यू, सर्वे और नुकसानात का अंदाज़ा लगाने के लिए सिंध में तैनात 5 कोर पाक फौज की मदद हासिल की है। इधर सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पहुंचने वाली मुख्तलिफ गैर सरकारी तंजीमों से वाबस्ता अफराद ने बताया कि बारिश के पानी की निकासी और दूर दराज इलाकों में सड़कों के नेटवर्क के टूटने की वजह से गंदे पानी से पैदा होने वाली बीमारियों और भूख के बारे में तशवीश बढ़ रही है। दूर दराज इलाके ही नहीं बल्कि बड़े शहरों जैसे लाड़काना, शिकारपुर, नौशेर अफरोज, पटीदन, खैरपुर और नवाबशाह में भी पानी की निकासी के लिए मतलूबा वसाइल और मशीनरी काफी नहीं। पानी की निकासी न होने के सबब नवाबशाह एयरपोर्ट को भी बंद करना पड़ा और रेल की पटरियां सैलाब में बह जाने के बाइस 2.5 माह से जायद अरसे के लिए सिंध पंजाब के लिए ट्रेन सर्विस को मुकम्मल बंद करना पड़ा। बड़ी तादाद में लोग कौमी शाहराह और निस्बतन ऊंचे मकामात पर पनाह लेने पर मजबूर हुए और बाज़ इलाकों में पानी की निकासी मुमकिन नहीं हो पा रही है। हुक्काम का कहना है कि अगरचे सूबे में रिलीफ सरगर्मियां जारी हैं, जिसमें हुकूमत के अलावा गैर सरकारी इदारे यानी NGOs भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन इस वक्त मुतासरीन की तादाद ज्यादा होने की वजह से फौरी तौर पर 10 लाख खेमों, 30 लाख मच्छरदानियों, 20 लाख राशन बैग्स और 10 लाख से जायद तरपालों समेत दीगर अमदादी अशिया की शदीद कमी लाहक है। यही नहीं बल्कि शहरों, कस्बों और देहात से पानी की निकासी के लिए बड़ी मशीनरी जिसमें क्रेनें, एक्सकेवेटर्स, डंपर्स और डी वाटरिंग पंप्स, फाइबर और रबर बूट्स, फ्यूमिगेशन मशीनें और इस तरह की दीगर मशीनरी की अशद ज़रूरत बताई जा रही है। रिपोर्ट में तजवीज़ किया गया है कि भारी बारिशों से होने वाले असल नुकसानात का तायुन करने के लिए जामे और मुनज़्ज़म सर्वे की ज़रूरत है। इससे कबल इस तरह का तखमीना 2011 के सुपर फ्लड के तनाजुर में हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर 2 मारूफ बैनुल-अक़वामी तरक्याती शराकतदारों वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक ने किया था। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी स्टडी न सिर्फ पूरे बुनियादी ढांचे को दोबारा तैयार करने के लिए दरकार अहम ज़रूरतों की वजाहत करेगी, बल्कि सड़कों की बहाली और तरक्की के लिए तरक्याती सरगर्मियों को दोबारा तरतीब देने का मौका भी फराहम करेगी। बारिश से सड़कें गायब हो गईं। कराची से हैदराबाद आने वाली फैमिली अपनी कार समेत सैलाबी पानी में डूबकर जा बहक हुई। नवंबर के तीसरे हफ्ते में सेवन शरीफ ट्रैफिक हादसा में 50 से जायद अफराद हलाक और जख्मी हुए। सड़क न होने के बाइस नाकाफी हिफाजती इकदामात पर वफाकी वजीर मवासलात ने सानहे के जिम्मेदार 6 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। दिलों का दिल से राब्ता तो हुस्न मोहब्बत है, मगर बकौल फैज चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, और फिर दिल को दिल से राह होती है। फिर ये राहें कहाँ चली गईं? जी हाँ, राहें यानी रास्ते जुदा नहीं बल्कि मिटी गए हैं। सिंध में मवासिलात का ये निज़ाम बारिश और सैलाब निकल गया है। मुल्क में मोटरवे से जुदा कौमी शाहराहों का एक मुल्कगीर जाल बिछा हुआ है। इन तमाम शाहराहों का इंतज़ाम मुक़्तदिरा कौमी शाहराह संभालती है। कौमी शाहराहों के लिए अंग्रेज़ी हरफ N इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 2 अदद होते हैं, जैसा कि N55। ताहम चंद कौमी शाहराहों के नाम अंग्रेज़ी के हरूफ S और E से भी शुरू होते हैं। मुल्क की सबसे बड़ी शाहराह N5 है,
जो कराची को पेशावर से मिलाती है। इस शाहराह की कुल लंबाई 1756 किलोमीटर है। आमतौर पर इसी शाहराह को कौमी शाहराह कहा जाता है। पाकिस्तान की कौमी शाहराहें और अहम सड़कें 1756 किलोमीटर तवील ये शाहराह कराची के साहिली शहर से शुरू होती हुई सिंध के हैदराबाद, नौशहर फिरोज और खैरपुर के अजला से गुजरती हुई पंजाब में दाखिल होती हैं, जहां ये मुल्तान, लोधरा, तहसील चीचावतनी, साहिवाल, लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, जहलम और रावलपिंडी के अजला से गुजरती है। रावलपिंडी से ये मशरिक की जानिब मोड़ खाती हुई दरियाए सिंध उबूर करके एक मर्तबा फिर दरियाए सिंध के मगरबी किनारों पर पहुंचती है, जहां ये अटक खुर्द से गुजरते हुए सूबा सरहद में दाखिल हो जाती है, जहां नौशेरा और पेशावर से होती हुई तौरखम के सरहदी कस्बे पहुंचती है। इस शाहराह के कुल 1756 किलोमीटर में से 1021 किलोमीटर पंजाब, 671 किलोमीटर सिंध और 127 किलोमीटर सरहद में वाक़ है। मुक़्तदरा कौमी शाहराह इस शाहराह का इंतज़ाम संभालती है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलाके वाहगा बॉर्डर लाहौर से लेकर पेशावर तक, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड पेशावर तक या जर्नीली सड़क भी N5 का हिस्सा है। पेशावर से लाहौर तक जाने वाली ये सड़क आमतौर पर जीटी रोड कहलाती है, जो लाहौर के करीब ये वाहगा नामी कस्बे के करीब ये भारत में दाखिल हो जाती है, जो दिल्ली से होती हुई कलकत्ता तक जाती है, जो शेर शाह सूरी ने कलकत्ता से काबिल तक बनाई। शेर शाह सूरी ने अपने दौरे हुकूमत में बहुत सी इस्लाहात नाफिज की। अपनी तामीरी कामों की वजह से वो हिंदुस्तान के नेपोलियन कहलाए। हालांकि जीटी रोड का नाम घोटकी के नाम से रखा गया है। अंग्रेजी के शॉर्ट टिकट लफ्जों में घोटकी को जीटी कहते हैं। ये नाम यहाँ से मशहूर हुआ। जीटी रोड की लंबाई कलकत्ता से काबुल तक 1500 कोस थी, जो आज तक कलकत्ता, दिल्ली, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर में जीटी रोड और जर्नेली सड़क के नाम से मशहूर है। 1990 की दहाई में इस शाहराह को 4 रोया करने के लिए एक वसी मंसूबे का आगाज किया गया और अब इस शाहराह का बेशतर हिस्सा 4 रोया है और ये पाकिस्तान की सबसे तवील और अहम तरीन शाहराह है, क्योंकि इसके जरिए कराची की बंदरगाह मुल्क के अहम इलाकों और बैरून मुल्क अफगानिस्तान और वस्त एशिया से मुंसलिक है। सिंध में सड़कें नापेद हो गई हैं, साजो सामान की नकलो हमल और इंसानी नकलो हरकत महदूद हो गई है। हैदराबाद के मेन आटोभान रोड का पता ही ना चला कि किधर खो गया। लतीफ़ाबाद के रास्ते खंडर हो चले। शायर भी मुतासिर हुए बगैर ना रह सका। कह उठा कि इन्हीं रास्तों पे चल के अगर आ सको तो आओ। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है, मगर अब रास्ते तो बहाल करना है। मंसूबे बन रहे हैं। 46 अरब की लागत से 71 सड़कों की तामीर नौ मरम्मत की मंजूरी दे दी गई है। मौजूदा वफाकी हुकूमत सिंध में तबाह हाल सड़कों की बहाली और मुरम्मत के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रही है। इसी हवाले से वफाकी वजीर बराए मवासलात मौलाना असद महमूद कहते हैं, सिंध की सूरत हाल इस वक्त सबसे दिगरगू है कि यहाँ पर पानी अभी तक खड़ा है और हमें एक्सेस नहीं मिल रहा, हम पहुँच नहीं पा रहे हैं। इंशाअल्लाह इस पर सूबाई हुकूमत, चीफ मिनिस्टर साहब, उनकी पूरी तंजीम और तमाम सियासी तंजीमें रिलीफ का काम कर रही हैं। इंशाअल्लाह हम एक वहदत का पैगाम देंगे, पूरी कौम को मुत्तहिद करेंगे और यही पैगाम है हमारा। हमने भी सब्र करना है और सब्र के साथ हमने आगे बढ़कर इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात पर मुझे यकीन है कि जहां हम दूसरे बहरानों से निकले हैं, हम इस बहरान से भी पाकिस्तान को निकालेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 46.3 अरब रुपए की लागत से शदीद बारिशों, सैलाब से तबाह होने वाली 71 सड़कों की ओवरहालिंग तामीर नौ की हिदायत की कि काम जल्द अज जल्द शुरू किया जा सके। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि तबाह शुदा सड़कों की ओवरहालिंग
بالخصوص چھوٹی سڑکیں جو کھیتوں کو منڈی اور مختلف دیہات کو مرکزی شاہراہوں سے جوڑتی ہیں، معیشت کی بحالی اور عوام کی سہولت و آمد و رفت کے لیے بہت اہم ہے، جتنی جلد ممکن ہو بحال کیا جائے۔ محمد نصیر نالو مٹھو، جو کہ سندھ ہائی ویز ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں، سندھ میں جاری سڑکوں کی تعمیر اور بحالی کے حوالے سے منصوبوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ جو برساتیں ہوئی اس میں جتنے بھی سڑکیں تھی، چاہے بڑی ہوں یا چاہے چھوٹی ہوں یا کچے رستے ہوں، ان کو بڑا نقصان ہوا ہے۔ کئی جگہوں پہ تو سیلاب آ گیا، اور جہاں سیلاب نہیں آیا وہاں بھی سڑکیں بہت متاثر ہوئیں۔ لہذا گورنمنٹ نے کافی اقدام اٹھائے ہیں۔ جو سڑکیں بالکل خراب تھی، موٹریبل نہیں تھی، ان پہ تھوڑا بہت کام کر کے اس کو موٹریبل بنایا ہے۔ نیشنل ہائی وے والوں نے اپنی سڑکوں کا تھوڑا ریپیئر کیا ہے، تھوڑا اس میں کام کیا ہے، جیسے سڑکیں بحال ہوں اور لوگ آ جا سکیں، ٹریفک کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ لہذا نقصان اتنا بڑا ہے کہ جلدی میں تو یہ کور نہیں ہوگا، مگر پھر بھی حکومت کوشاں ہے۔ ابھی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے اپنے کام کیے ہیں، پروونشل گورنمنٹ نے اپنے کام کیے ہیں، اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس نے اپنا کام کیا ہے۔ تو ابھی بھی ہماری ڈپارٹمنٹ نے جو پروپوزل منگائے ہیں کہ جہاں جہاں بالکل سڑکیں خراب ہیں ان کو ہم اچھی طرح سے بنائیں، تو وہ مقامی گورنمنٹ جو ہے، لوکل گورنمنٹ والے جو ہمارے الیکٹڈ نمائندے ہیں، ان کے توسل سے ہم ان کے پروپوزل منگا رہے ہیں، اور یہ اس کی اسٹیمیٹ بنا کے ہم اوپر بھیج رہے ہیں تاکہ اوپر سے یہ اپروول ہو جائے، اور اس کے بعد ہم ان سڑکوں کو اچھی طرح سے بنا کے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں۔ نقصان اتنا بڑا ہے کہ جلدی میں ریکور نہیں ہوگا، تھوڑا بہت ٹائم لگے گا، مگر انشاءاللہ تعالی یہ جو معاملات ہیں یہ سارے اچھی طرح سے حل ہو جائیں گے۔ اور ہم لوگوں کا بھی یہ فرض ہے کہ جتنا ہو سکے ہم سڑکوں کو یا رستوں کو اپنی طرح سے بھی تھوڑا بہت سپورٹ کریں اور ان کو خراب نہ کریں، تو یہ ہم سب کے لیے بہتر ہے، کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے، ہم ہی اس کو بنائیں گے اور یہ ہمارے لیے اچھی بات ہوگی۔ سندھ کے 23 اضلاع کی 71 سڑکیں، جن کی مجموعی لمبائی 1473.38 کلومیٹر ہے، شدید بارشوں اور سیلاب سے تباہ ہوئی ہیں۔ ان میں ضلع جامشورو میں 157.7 کلومیٹر طویل 6 سڑکیں، دادو میں 149.27 کلومیٹر کی 5 سڑکیں، شہید بے نظیر آباد میں 106.6 کلومیٹر کی 3 سڑکیں، نوشہر و فیروز میں 137 کلومیٹر کی 9 سڑکیں، حیدرآباد میں 20.4 کلومیٹر کی 2 سڑکیں، ٹنڈو الہیار میں 93.8 کلومیٹر کی 6 سڑکیں، ٹنڈو محمد خان میں 19 کلومیٹر کی 1 سڑک، ٹھٹا میں 65 کلومیٹر کی 4 سڑکیں، سجاول میں 55.5 کلومیٹر کی 2 سڑکیں شامل ہیں۔ سڑکوں کی تعمیر و مرمت پر لاگت کا تخمینہ 46.32 ارب روپے لگایا گیا۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بھی صوبے کی کچھ بڑی سڑکوں کی مرمت کے لیے مالی معاونت پر رضامندی ظاہر کی ہے، جس کے لیے ضروری دستاویزات مکمل کی جا رہی ہیں۔ دیکھی کیا گزرتی ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک، اور امید رابطہ کی اور بحالی سڑکوں کی۔ امید ہی تو زندگی ہے کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ ملک اور سندھ کی شاہراہیں پھر سے بحال ہوں گی، ترقی اور خوشحالی کا ایک نہ ختم ہونے والا باب ہی ہمارا مقدر ہے۔ سامعین، ابھی آپ تعمیر نو کے سلسلے میں فیچر پروگرام سن رہے تھے۔ آج کا موضوع تھا رابطہ سڑکوں کی بحالی۔ تحریر فجر خان، راوی محمد فاروق اقبال اور ساجدہ نعیم، پروڈیوسر محمد عارف، پیشکش ریڈیو پاکستان حیدرآباد۔